Good morning, students. I hope you read all the questions of ratio. So in this video, I'm going to explain goodwill. Okay. तो जो ये एडमिशन का चैप्टर है, इसमें सेकंड टॉपिक हमारा आफ्टर रेशियो हमने लास्ट वीडियो में कुछ कवर किया था। तो उसमें 1 to 13 तक आपके रेशियो के क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तो जो सेकंड स्टेप हमारा आता है वो है गुडविल। तो गुडविल देखते हैं, ठीक है। तो एडमिशन के अंदर हमने गुडविल पढ़नी है और गुडविल कैलकुलेट होती है 4 तरीक़ों से, 4 टाइप्स ऑफ गुडविल। ओके। तो द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट। ठीक हो क्या? मेथड वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, मेथड ऑफ कैलकुलेशन गुडविल। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड and the second method is super profit method and the third one is capitalization average profit method. Capitalization average profit method and the fourth one is capitalization super profit method. Okay, so 4 method of calculation goodwill, so it will very helpful to calculating amount of goodwill for the partner, either he is retiring or admitting in a firm. So in this video we will cover the first and as well as the second method of calculation goodwill. So average profit method. Okay, the first method we are discussing here. Okay, so in this method what we have to do, we have to add the profits of all year. Okay, so the formula will be goodwill equals to average profit into number of year purchase. Okay, what is number of year purchase? It is the valuation of goodwill और ये हमेशा आपको दिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तो गिवन होगा ऑलवेज, और नहीं होगा तो इसका मेथड होता है वो विल डिस्कस लेटर। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स ओके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, फॉर एग्जांपल वी हैव प्रॉफिट ऑफ 2019, 2018, 2017। ओके, ये हमारा करंट ईयर है, देन प्रीवियस। ओके, तो अमाउंट इज गिवन 40,000, then 60,000, then 20,000. Okay, the total is 120. Okay, 120,000. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 120,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स? 1 2 3 3। ओके, तो इट विल बी 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज योर 40,000. Then after average profit what you have to do? You have to multiply the average profit with the number of year purchase which is given in the question. Suppose 3. Okay, in this case 3 नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट सेम रहेगा ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन आएगा। फिर ये 2 हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट विच इज़ 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है गिवन, तो इट विल बी 2, तो 80,000 गुडविल। ओके, तो गुडविल का वैल्यू जो आया वो 80,000 आया। ठीक है बच्चों, नाउ द सेकेंड वन मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड
for calculation of goodwill. Okay, so here the formula is goodwill equals to super profit into number of year purchase. Okay, so here the formula is, ठीक, तो super profit equals to super profit. How we have to calculate the super profit? Okay, there is a formula to calculate super profit, which is actual profit minus normal profit. Okay, so actual profit is your average profit. Okay, ठीक है, and normal profit is sometimes given in the question, otherwise not given. So here is the formula of calculating normal profit, which is capital employed into rate upon 100. Rate is always given in the question, so there is no problem about the rate. Okay, so normal profit equals to capital employed upon into rate upon 100. So we will get normal profit. Actual profit if not given. Okay, so I just tell you कि if not given then average profit ही हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा. ठीक, नेक्स्ट, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें दी होती हैं क्वेश्चन के अंदर. ये हमारा निकलेगा एसेट्स और लायबिलिटीज से, एसेट्स और लायबिलिटीज से. ठीक हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ऑल एसेट्स, ठीक, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. ठीक, ये ऑल एसेट्स के अंदर क्या क्या एसेट्स होंगे, या फिर हम इस तरीके से डील करें कि क्या क्या एसेट्स नहीं होंगे. तो एक्सेप्ट गुडविल और एनी इंटेंजिबल एसेट. ओके, तो ये इसके अंदर हमने नहीं लेना है. ठीक, तो you will get the capital employed. Maximum time in the question the capital employed is given. So if not given, I am telling you, I told you the formula कि how to calculate the amount of total capital employed with assets and liabilities. Okay, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, उसके बाद देखते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, ओके, तो एनसीईआरटी का ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पहला, 14th वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो इस 14th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख. ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस केस गिवन है यहाँ पर, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट. ओके, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%. नॉर्मल रेट इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, देन ड्यूरिंग द ईयर, ये छोड़ो, और ये कह रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म का है वह 48,000. ठीक, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3 ईयर. ओके, कैलकुलेट कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, हमने मेथड को इसको कैलकुलेट करना है. ठीक, तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं. ठीक हो गया, जो हमें इन्फो गिवन है. तो हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, और रेट दिया हुआ है, कितना दिया था रेट, 15%. ठीक, और प्रॉफिट हमें गिवन है 48,000. ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स. चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, और सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा ऐसे, तो लिंक बनाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, ओके। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पर रखते हैं कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन हियर 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ into rate which is 15% upon 100, that will be 30,000, okay. Normal profit is 30,000 calculated. Then you have to go for the method for calculating goodwill. तो goodwill यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं, तो क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता है नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हमें गिवन है, कितना है 48,000 गिवन, ओके। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा निकाल लेते हैं, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो इट विल बी एसपी, सुपर प्रॉफिट को मैं यहाँ एसपी लिख देता हूँ, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 48 माइनस 30,000, दैट विल बी 18,000, ओके। सुपर प्रॉफिट हमारा 18,000 आया था है, ठीक है। गुडविल कितनी आएगी, गुडविल इक्वल्स टू 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा क्वेश्चन के अंदर, ये बनता 3 ईयर्स, ओके। तो मल्टीप्लाइड विद 3, तो गुडविल इक्वल्स टू 54,000, 24, ठीक हो गया, 54,000, इट्स योर आंसर, ओके। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, और अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो उससे भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो रेशियो वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है 1 से लेकर के 13 तक, तो यू कैन आस्क इन, एंड ये वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एटलीस्ट इन जो मैंने समझाया है इन क्वेश्चंस को तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, थैंक यू।